Party has launched an all-out attack on the government over demonetization. Let's cut across live now to Randeep Surjewala's press conference. Which he continues to do every day onto leaders of the opposition parties. Let him mock the entire country. Prime Minister mocks the entire nation. The other day he was sitting in Japan and mocking everybody who was getting married and who was not able to arrange their marriages. Such has become the character and style of this honorable Prime Minister. But Prime Minister must realize that arrogance of power should not surpass the problems faced by people. Let PM mock leaders of the Congress party, we don't care. But let him not mock the people of this country, which he is doing. Sir, I'll come to you after. इस बात को कई समाचार पत्रों के माध्यम से और अब राजनीतिक दलों के माध्यम से देश की जनता के समक्ष रखा जा रहा है। एक तरफ मेरे मित्र वो लोग हैं जो 5-5, 6-6 दिन से लाइनों में खड़े हैं। क्या वो चोर हैं? क्या उनके पास काला धन है? क्या आपने मोदी जी के किसी चुनिंदा मुट्ठी भर उद्योगपति मित्रों में से एक को भी लाइन में लगे देखा? क्या मोदी जी का एक कैबिनेट मंत्री, एक मुख्यमंत्री, उनका एक किसी प्रांत का मंत्री लाइन में खड़ा है? पर पूरा देश खड़ा है। तो स्वाभाविक तौर से जनता के साथ, जनता पर जो मुसीबत का पहाड़ टूटा है और मोदी जी की जो मनमानी है, इसको सार्वजनिक तौर से हम और जोर से उजागर करेंगे और हर वो आवाज जो इसमें स्वर मिलाएगी उसका स्वागत है, क्योंकि यह कांग्रेस का मुद्दा नहीं, यह इस देश के 125 करोड़ लोगों की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। Sorry, after him I'll go. Will your party MPs join Mamata Banerjee-led Trinamool MPs and other opposition parties MPs when they hold a march to Rashtrapati Bhavan on 16th or 17th on this issue? Parliamentary strategy is decided by the leaders of the parliamentary party, and I'm sure they will consult all opposition parties and form a concerted strategy. But as I said, this is not an issue of an individual political party. This is an issue wherein the entire country has been plunged in economic anarchy by a dictatorial and autocratic Prime Minister and his government. And it is our duty to raise and champion the voice of the people in the most befitting fashion, so as to highlight and bring this to the attention of the government, which currently in their arrogance of power and numbers is refusing to listen to the voice of reason and the cry and pain of the ordinary person of this country. And we will join our strength in all such voices, irrespective of any ideological differences we may have with individual political parties. आपने जितनी भी बातें कही, ऐसा लगता है कि इस फैसले का जो कार्यान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उससे आपको समस्या है। पहले दिन आपने इस फैसले का स्वागत किया था। क्या इस फैसले के स्वागत के ऊपर आप फिर से मीटिंग कर रहे हैं? आपको लगता है बार-बार 1000 रुपए नोट को अभी डिमांड नहीं करना चाहिए? आपने दो प्रश्न पूछे। पहली बात तो मोदी जी का यह निर्णय नोटबंदी का नहीं। इट्स नॉट ए डिसीजन टू डिमोनेटाइज। He has only replaced currency with currency. Had he shut down completely 500 and 1000 rupee note and not circulated fresh ones, then it would have been demonetization. So this is only a note exchange policy. So let me correct everybody who feels that this is a decision to demonetize. Demonetization means that a specific denomination of note is forever closed, like it was done in 1978 and then restarted by Janata Party government. So this is a decision. Modi ji is saying, I will replace 500 and 1000 rupees note
with 500,000 and 2,000 rupee note. So he has actually increased the denomination of notes. Number 2, on पहले दिन भी हमने ये कहा था कि काले धन से हर लड़ाई का हम समर्थन करेंगे, परंतु पहले दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अकेला राजनीतिक दल था और फिर मुझे खुशी है। All right, that was Congress spokesperson Randeep Surjewala lashing out at the government over demonetization. In fact, the Congress's stand is that this decision is not demonetization at all. They are claiming that it is currency replacement with newer currency. Shrikant Sharma of the BJP is speaking at the moment. Let's विपक्ष के listen. लोगों ने सबूत भी मांगे और वही अब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा प्रहार, काले धन के ऊपर एक कड़ा प्रहार जो हमारी आने वाली नस्लों को तबाह करता है, जो नशे का कारोबार करने वाले हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार, जो आतंकवादियों को धन मुहैया कराते हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार, जो देश के गद्दार इस देश के अंदर एक फेक करेंसी का रैकेट चलाते हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार, भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ा प्रहार, तो विपक्ष को ये पच नहीं रहा है और विपक्ष नमोनिया से ग्रस्त है। लगातार अनर्गल बयानबाजी, बौखलाहट में बयानबाजी, क्योंकि ये तीर उन राजनीतिक पार्टियों के बिल्कुल तिजोरी पर लगा है जहां भ्रष्टाचार से अर्जित काला धन पूरी तरह से एकत्रित करके रखा था और एक ही फैसले में वो कागज़ के टुकड़ों में तब्दील हो गया, वो रद्दी बन गया। और इसलिए दिखावे के लिए आम आदमी का नाम ये राजनीतिक पार्टियां उपयोग कर रही हैं, लेकिन दर्द इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और बहन मायावती जी की आज की जो बौखलाहट है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी पराजय दीवार पर सीधा सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि उनकी पराजय निश्चित है, क्योंकि बहन मायावती जी अपने सभी काम काले तरीके से करती हैं और जो टिकटों का एडवांस उन्होंने लिया है अब वो समाप्त हो गया। जो हर काम वो एक सूची उन्होंने लगा रखी है कि टिकट का इतना रेट, मिलने का इतना रेट, चाय पीने का इतना रेट और पैर छूने का इतना रेट, तो उनका रेट लिस्ट के कारण जो उन्होंने काला धन अर्जित किया था वो काला धन सब अब समाप्त हो गया है और उसी की बौखलाहट में बहन मायावती जी अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। जिस तरह के उन्होंने बहुत निचले स्तर के आरोप देश के प्रधानमंत्री जी पर लगाए वो बहुत ही निराशाजनक हैं, बहुत निचले स्तर के हैं और हम उनको पूरी तरह से खारिज करते हैं और बहन मायावती जी से पूछना चाहते हैं कि बात तो आप गरीब की करती हैं, दलित की करती हैं, लेकिन जब काशीराम जी जब तक बहुजन समाजवादी पार्टी में थे तब वो एक पार्टी, एक आंदोलन थी, लेकिन बहन जी आपने बीएसपी को तो आप दुकान में तब्दील कर दिया है, पैसे दो और टिकट ले जाओ। तो आप दलितों की नहीं बल्कि आप दौलत की बेटी हैं और आपकी दौलत जो आपने गलत तरीके से अर्जित की थी, जो खून पसीने की जो लोगों की कमाई थी वो आपने अर्जित की थी, वो आपकी कमाई जो थी, जो बेईमानी का जो पैसा था, जो भ्रष्टाचार से अर्जित किया गया पैसा था, जो एनआरएचएम घोटाले का पैसा था, जो ताज कॉरिडोर का पैसा था, जो होमगार्ड भर्ती का घोटाले का पैसा था, जो पुलिस की भर्ती के घोटाले का पैसा था, वो पैसा आपका अब समाप्त हो गया और आपको लगता है कि ये जंग भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इस जंग को कैसे भौंतरा किया जाए उसके लिए आप दुष्प्रचार कर रही हैं। आपने तो ये भी कहा कि 250 रुपये देके लोगों को बुलाया गया, ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है बहन जी। आप अच्छे से समझती हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बीएसपी का वजूद समाप्त हो गया है और बीएसपी को आप अगर चश्मा भी लेके देखा जाए तो दूरबीन लेकर भी देखा जाए तो बीएसपी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आपकी पराजय निश्चित है और ये लड़ाई बहन जी किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उन देश के गद्दारों के खिलाफ है जिन्होंने इस देश को आर्थिक रूप से खोखला करने का काम किया है। ये लड़ाई उनके खिलाफ है जो आतंकवादियों को धन मुहैया कराते हैं। ये लड़ाई उनके खिलाफ है जिन्होंने गरीब का हक हड़पने का काम किया है। आज गांव के अंदर पानी नहीं है, आज गांव के अंदर बिजली नहीं है, आज गांव के अंदर सड़कें नहीं हैं, आज गांव के अंदर शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त हो गई हैं। ये लड़ाई गांव के लोगों की लड़ाई है, ये देश के गरीब के लोगों की लड़ाई है और इस लड़ाई में एक लाइन तय हो गई है कि कौन पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार और काले धन के समर्थन में हैं और कौन पॉलिटिकल पार्टियां, कौन लोग, ये देश की जनता भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ है। जनता तय करेगी और मायावती जी
और आपके जो भतीजे हैं, आपकी जो जुगलबंदी है 15 साल से, अब वो एक्सपोज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से बेईमानों, भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने वाले पॉलिटिकल पार्टियों की विदाई तय है और अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी और आपके भतीजे की विदाई तय है। इसलिए बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी आप कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको करारा जवाब देगी। धन्यवाद, मेरी तरफ से इतना ही। इस देश के अंदर अगर किसानों के पास पैसा है तो वो बैंक में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। कृषि की आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 वोटर आई कार्ड हैं, तो आप 2.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। गरीब तो जिसके पास पैसा ही नहीं है उसके बारे में आप बात करें, लेकिन असली दिक्कत तो मायावती जी को ये है कि उनका जो टिकटों के लिए पैसा जो एडवांस लिया था वो ख़राब हो गया है। गरीब का तो सिर्फ वो नाम ले रही हैं, वास्तविकता में तो ये करारी चोट उनके जो काला धन अर्जित किया था उसके ऊपर है। इसलिए बौखलाहट में ये बयानबाजी है। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि जो व्यक्ति रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुलाटे मारते थे, जब भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ा प्रहार देश की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो उम्मीद थी उन लोगों को कि वो मोदी जी का समर्थन करेंगे, लेकिन उनके चेहरे से नकाब उतरा है और उन्होंने पंजाब में जिस तरह से टिकटें बेची हैं और टिकटों से जो काला धन अर्जित किया है वो कागज़ के टुकड़ों में तब्दील हो गया है और इसलिए उनकी बौखलाहट छुपाने से नहीं छुपती है। उनके चेहरे से नकाब उतरा है कि जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में बिगुल बजा रहा था, दिल्ली के सचिवालय पहुँचते पहुँचते केजरीवाल जी का चेहरा, चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल गया। आखिरकार वो भ्रष्टाचार के साथ क्यों खड़े हो गए? तो जनता उनसे भी जवाब मांगेगी, जनता राहुल गांधी से भी जवाब मांगेगी, जनता मुलायम सिंह जी के पूरे परिवार से भी जवाब मांगेगी। जिन लोगों ने काला धन का संचय किया है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से देश की जनता जरूर सवाल पूछेगी, क्योंकि आप भ्रष्टाचार की बात भाषणों में तो करते हैं, देश के विकास की बात भाषणों में तो करते हैं, लेकिन जब कोई ईमानदार प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करता है तो उस लड़ाई को आप कुंद करने की कोशिश करते हैं। अभी तो ये अफवाह भी फैलाएंगे। देश की जनता सतर्क है, इनके किसी भी अफवाह में देश की जनता आने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई चोर नहीं है इस देश के अंदर, कोई बेईमान नहीं है। जो बेईमान और चोर हैं वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हाँ, ज़रूर उनके प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहन मायावती जी, केजरीवाल साहब ज़रूर उनके प्रवक्ता के तौर पर बातें कर रहे हैं और वो भी एक्सपोज हो रहे हैं पूरी तरह से। ये लड़ाई कॉमन मैन की लड़ाई है, ये लड़ाई आम जन की लड़ाई है और ये लड़ाई देश के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। कॉमन मैन, आम जन जो है, देश के लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन एक सवाल हम आपके माध्यम से ज़रूर पूछना चाहते हैं कि ये जब लड़ाई नारकोटिक्स का जो काम करते हैं इलीगल तरीके से, जो नशे के कारोबारी हैं, जो एक फेक करेंसी का रैकेट चलाते हैं, जो आतंकवादियों को धन मुहैया कराते हैं, ये लड़ाई उनके खिलाफ है। तो इनकी और जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह जी की पार्टी की, आखिरकार आपकी इनके साथ साठगांठ क्यों है? क्यों आप इनका समर्थन कर रहे हैं? आप तो देश के लोगों से वोट की अपील करते हैं, लेकिन समर्थन आप ऐसे लोगों का करते हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। ये लड़ाई उनके खिलाफ है। धन्यवाद।